हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन के बारे में बताया था, जिसमें यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन था, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन था। एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन एंड वन मोर टॉपिक, दैट इज़ halting problem of Turing machine. तो फर्स्ट इज़ non-deterministic Turing machine. Non-deterministic Turing machine is when a particular present state and present input symbol, it have more than one next state or input cell modifying value or direction of movement. Means if there is, for a particular present state and input symbol, there is more than one element of this Cartesian of this product, that is in triplet form, capital Q and tape symbol and left right movement set. तो अगर हमारे पास एक से अधिक एलिमेंट हैं इससे रिलेटेड, तो वो नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन होता है। तो यहाँ पे 7 टपल डेफिनेशन यहाँ पर भी है, और एज यूजुअल कैपिटल क्यू, टर्मिनल सिंबल सेट, स्टेप सिंबल सेट, ट्रांजिशन फंक्शन सेट and start state, special step symbol, that is blank symbol, and set of final state. So everything have usual meaning. I will explain it later on, but the question is non-deterministic Turing machine. Non-deterministic Turing machine, suppose that delta QA is equal to Q2 comma A comma left comma Q2 comma B comma L. Here we are observing that there are more than one option for Q1A. Even that there are 3 components: state, modifying value of cell, and direction of movement. If one of them is different, it will be treated as different. So because in first triplet it is written that next stage Q2 and modifying value is A, direction of movement is L, and second triplet next state is same but modifying value is different and direction of movement is same. It may be different in all 3 aspects, it may be different some of aspect, but it will be treated different element whenever it have difference in any aspect. When there is more than one option for a particular present state and present input symbol, then it will character of the non-deterministic Turing machine. Means if you have at least one transition like this in your set of transition rule, then Turing machine will be non-deterministic Turing machine. Means if you have at least one such transition where multiple option, then Turing machine will be non-deterministic Turing machine like NDFA. So concept is same as in case of non-deterministic Turing machine. There is no major difference except to their way of dependency on in transition function. In case of non-deterministic Turing machine, we have mapping like 2 into 2, but here 2 into 1. Actually there is that one was the only transiting machine, so we will get just what is next state. So
2:1 मैपिंग था, बट यहाँ पे 2:3 मैपिंग है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट के अलावा भी मॉडिफाइंग वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी है. बट मेन थिंग इज दैट what is the element that we are getting. It is element. If you are getting more than one element, then it will be non-deterministic Turing machine. And here capital Q is similar, that is capital Q is set of state, finite non-empty set of state, in the same way we have defined in all the machines, so no difference. And 2 is the finite non-empty set of input alphabet type symbols, means whatever symbols to be written in the tab will be known as tab symbol. It is different than inputs alphabet, because input alphabet, in the case of input alphabet, we have some specific symbols that is correspond to the strings that we have to check, and tab symbol is different symbol set because it includes other symbols also, other symbols also other than input symbols, input alphabet symbols. So to set that representing to is different, but it will include all the symbols in the input alphabet set. Means to it will be as a superset, and input alphabet set will be subset. Here B is specific symbol, that is blank symbol. This will be used to represent blank cells where nothing is written, so this will be blank symbols. And this is set of input alphabet on which language is defined, for which Turing machine is designed, and it never include blank symbols. Blank symbols are not part of input alphabet. Q0 is the initial state, that is specific state, and F is set of states, that is set of final state, and F is subset of capital Q. Transition functions looks like this: 2:3 mapping. There is 2 dependency and this is 3 dependency, and one thing is missing here, that is it is power set of this set, that is equal to 2 to the power Q into tau into L comma R. So if this is power set, this is set, and 2 to the power Q into tau into LR is a power set of this set. So, and power set, you know that more than one element may be contained, and even that it will be phi also, because phi is element of every power set, so we have to care. Next is Turing machine halting problem. Actually ट्यूरिंग मशीन हाल्ट करता है कि नहीं करता है, ये एक प्रॉब्लम है. ट्यूरिंग मशीन आपका अगर इनफाइनाइट लूप में चला जाता है तो ये एक प्रॉब्लम है. अब ट्यूरिंग मशीन आपका पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, ये तभी माना जाएगा जब मशीन आपका फाइनल स्टेट में हाल्ट करे. समटाइम्स मशीन नॉट हाल्ट, समटाइम मशीन क्रैश, ये सब चीज़ें आप 4 डिफरेंट आउटकम में पढ़ चुके हैं.
वहाँ पे बताया गया था आपको कि क्या 4 डिफरेंट आउटकम होते हैं व्हेन प्रेजेंट स्टेट एंड करंट इनपुट सिंबल इज इंटरटेन्ड। एक तो आपका था कि मॉडिफाई होता है सेल, दूसरा डायरेक्शन होता है मूवमेंट का, तीसरा होता है कि मशीन हाल्ट करेगा नहीं करेगा, एंड फोर्थ वन इज़ द व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेट। तो हाल्ट बेसिक मतलब स्टॉप से है। द प्रॉब्लम इज़ गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ट्यूरिंग मशीन यम एंड एन इनपुट W does M when started in the initial configuration Q0W, मतलब ये प्रेजेंट स्टेट है और ये पूरी स्ट्रिंग W है, इनिशियल आईडी यही रहेगी। परफॉर्म ए कंप्यूटेशन दैट इवेंचुअली हाल्ट। We asked whether M applied to W halts or does not halt, मतलब रुकेगा कि नहीं रुकेगा। The domain of this problem is to be taken as the set of all Turing machines and all W. Means ये प्रॉब्लम किसी एक पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन ना ही केवल एक स्ट्रिंग के लिए है, ये सभी तरह के ट्यूरिंग मशीन और सभी इनपुट स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सारे इनपुट स्ट्रिंग कंसिडरेशन में लिए गए हैं, सारे ट्यूरिंग मशीन कंसिडरेशन में लिए गए हैं। That is, we are looking for a single Turing machine that given the description of an arbitrary M and W will predict whether or not the computation of M applied to W will halt। मतलब आप कोई एक स्ट्रिंग लिए और उसको किसी मशीन में इनपुट किए और अब मशीन हाल्ट करेगी नहीं करेगी, ये प्रॉब्लम है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है हाल्टिंग। अब क्या इसका कंक्लूजन आता है? वी कैन नॉट फाइंड द आंसर बाई सिमुलेटिंग द एक्शन ऑफ M ऑन W, say by performing it on a universal Turing machine, because there is no limit on the length of the computation. If M enters in an infinite loop, then no matter how long we wait, we can never be sure that M is in fact in a loop. It may simply be a case of वेरी लॉन्ग कंप्यूटेशन। अब आपने एक W दिया स्ट्रिंग को, अब वो मशीन इनफाइनाइट लूप में चला गया, लॉन्ग टाइम प्रोसेस चल रहा है। अब आप ये थोड़ी कहेंगे कि हाल्ट करेगी नहीं करेगी, ये अनडिसाइडेबल हो गया। पता नहीं, हो सकता है लॉन्ग कंप्यूटेशन हो, मीन्स आफ्टर सम टाइम इट मे बी हाल्ट। अब आप सोच रहे हैं, आप अब वेट किए कुछ देर ऐसे काफ़ी लंबे समय तक वेट किए, लेकिन अब आपने डिसाइड कर लिया कि ये हाल्ट नहीं करेगी। लेकिन ये श्योर तो कर नहीं सकते हैं, हो सकता है 1 घंटे बाद हाल्ट कर जाए, हो सकता है 10 मिनट बाद हाल्ट कर जाए, हो सकता है जब आपने डिसाइड किया उसी के जस्ट बाद हाल्ट कर जाए। अब हाल्ट कर गया तो आप तो गलत हो गए, और आपने कहा नहीं हाल्ट कर जाएगा, अभी 1 घंटे बाद हाल्ट करेगा। अब पता चला 1 घंटे के बाद नहीं हाल्ट किया, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे और भी समय लग गए। तो बोथ आंसर विल बी नॉट प्रिडिक्टेबल, मतलब ये क्या हुआ, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, वी कैन नॉट डिसाइड। एक्चुअली दोनों सिचुएशन में आप गलत हो जाएंगे। आपने कहा कि मशीन हाल्ट कर जाएगी, अभी 10 मिनट बाद हाल्ट कर जाएगी, अब 10 मिनट बीत गया, फिर आपने कहा 5 मिनट बाद और वेट कर लेते हैं, फिर नहीं हाल्ट किया, फिर आपने नहीं 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद हाल्ट ही कर जाएगी, नहीं हाल्ट किया। अब अपना टाइम बढ़ाते गए, नहीं हाल्ट किया। अब पता चला कि आपने कह दिया नहीं अभी ये हाल्ट नहीं करेगी। अब आपने जैसे ही बोला हाल्ट नहीं करेगी, तो पता चला हो सकता है 10 मिनट बाद हाल्ट कर जाए। आपने जब डिसाइड किया कि ये हाल्ट नहीं करेगी, या जब आपने प्रिडिक्ट किया हाल्ट नहीं करेगी, उसके कुछ समय के बाद हो सकता है हाल्ट कर जाए। हो सकता है
अब आप तब भी रॉन्ग हो गए, तो दोनों सिचुएशन में आप गलत हो सकते हैं. सो वी कैन नॉट से इट इज़, दैट्स वाई इट इज़ अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम. आगे देखिए लिखा गया है, हाल्टिंग प्रॉब्लम इज़ दैट्स वाई अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम. क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम जो भी प्रिडिक्ट करेंगे वो गलत हो सकता है. सो इट इज़ अनडिसाइडेबल. If the halting problem were decidable, then every recursively enumerable language would be recursive. Consequently, the halting problem is undecidable. तो ये अभी आप आगे आप पढ़ भी चुके हैं. रिकर्सिव मैं वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया भी हूँ रिकर्सिव और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज के बारे में. रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज के लिए क्या नेसेसरी था? ओनली ट्यूरिंग मशीन ऐसा हो जो उसको एक्सेप्ट करे. ओनली एक्सेप्टेंस का था वहाँ पे कमिटमेंट. और रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए कमिटमेंट एक्सेप्टेंस का भी था एज वेल एज फॉर हॉल्ट के लिए भी था. ऐसे आपने एक ब्लॉक डायग्राम देखा था, उसमें कोर पार्ट में रिकर्सिव लैंग्वेज था और उसके आउटसाइड में रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज था. रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज जो है वो एक तरीके से रिकर्सिव लैंग्वेज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज का सबसेट है. और रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, हर एक रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज रिकर्सिव हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर रिकर्सिव लैंग्वेज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज होता है, क्योंकि सब कैरेक्टरिस्टिक है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज की. रिकर्सिव लैंग्वेज के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक है. एक तो ट्यूरिंग मशीन ऐसा एग्जिस्ट करे जिसमें हाल्टिंग भी हो, एक्सेप्टेंस भी. और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज में केवल एक्सेप्टेंस की कमिटमेंट थी. तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है. एक तो हाल्टिंग प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है, और दूसरी चीज़ रिकर्सिव, अगर सारे मशीन, अगर ये हाल्टिंग प्रॉब्लम डिसाइडेबल हो गया तो निश्चित तौर पे सारे रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज रिकर्सिव लैंग्वेज हो जाएंगे. यहाँ पे आपको बताया गया था रिकर्सिव इन्यूमरेबल एंड रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए ब्लॉक डायग्राम. और एक और भी प्रॉब्लम हमने बताया, एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि ये थियरम सब थे, ये एक तरीके से क्लोजर लॉ की तरह से हैं. There exists a recursively enumerable language whose complement is not recursively enumerable language. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह से है कि इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन. रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, इसका मतलब था. और भी ये बड़ा अच्छा था एक थियरम कि इफ़ यल एंड यल बार बोथ रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, दोनों मतलब यल लिया और यल बार लिया, दोनों कॉम्प्लीमेंट, एक यल है ओरिजिनल और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट यल बार है, और दोनों अगर रिकर्सिवली इन्यूमरेबल हो गए तो ये जान लीजिए कि वो तब रिकर्सिवली इन्यूमरेबल नहीं है, तब वो रिकर्सिव लैंग्वेज है. बोथ रिकर्सिव लैंग्वेज हो जाएंगे, यल भी रिकर्सिव हो जाएगा, यल बार भी रिकर्सिव हो जाएगा. तो कॉन्सिक्वेंटली तो ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि दोनों में से दोनों के दोनों अगर रिकर्सिवली इन्यूमरेबल हो गए तो रिकर्सिव हो जाएगा, ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा. देयर एग्जिस्ट ए रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज दैट इज़ नॉट रिकर्सिव, दैट इज़ द फैमिली ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेज इज ए प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट कहा है, ध्यान रखिएगा, सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट. ये साइन बनाना है, ये साइन नहीं बनाना, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ न कुछ एक्सक्लूडेड ज़रूर रहेगा. कि कुछ लैंग्वेज, कुछ ज़रूर जो फैमिली ऑफ रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज है उसमें कुछ न कुछ ऐसे लैंग्वेज ज़रूर होंगे जो रिकर्सिव नहीं होंगे, ये कहने का मतलब है. तो ये हाल्टिंग प्रॉब्लम एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है. अगर ये कभी डिसाइडेबल हो गया तो सारे रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज रिकर्सिव लैंग्वेज हो जाएंगे.
ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और हाल्टिंग प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों अनडिसाइड, हाल्टिंग प्रॉब्लम मतलब मशीन हाल्ट कर देगी कि नहीं करेगी व्हेन वी पास एनी स्ट्रिंग टू द machine, Turing machine. It is undecidable, but why? We cannot decide whenever we pass any string to the Turing machine up that it will halt or not. अगर हम कहते हैं कि halt नहीं करेगी, पता चला आपने जैसे ही स्टेटमेंट दिया नहीं ये halt नहीं करेगी, लेकिन पता चला कुछ देर के बाद halt कर गई, तो आप गलत हो गए। फिर दूसरा आपने कहा कि नहीं ये हाल्ट करेगी, अब आप पता चला बोल दिया हाल्ट करेगी और वो हाल्ट नहीं कर रही है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस चल रहा है, तो इस नाते ही अनडिसाइडेबल है। ट्यूरिंग मशीन, अब ट्यूरिंग मशीन का एक ऐसा वर्जन जिसमें हम मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करते हैं, इसी नाते ट्यूरिंग मशीन एज कंप्यूटर इंटीजर फंक्शन means Turing machine can compute any function। तो मतलब your Turing machine can behave like any function, mathematical function। और ये चर्च से बताया गया है there is no any mathematical computation for which Turing machine does not exist, ये भी बात बताई गई है। तो हर एक मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के इक्विवेलेंट एक ट्यूरिंग मशीन होता ही है। तो ये जितने भी एफ ऑफ n इक्वल टू 1, एफ ऑफ n इक्वल टू n प्लस 1, एफ ऑफ m कामा n इक्वल टू m प्लस n, मतलब कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, इन सब के लिए आप ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये ट्यूरिंग मशीन जो होते हैं केवल इंटीजर की बात हम कर रहे हैं, डेसिमल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंटीजर फंक्शन इसी वजह से लिखा गया है, ये भी ध्यान रखना है, इंटीजर फंक्शन इसी नाते लिखा गया है, क्योंकि हम लोग जो मान लो 2 + 3 करना है, तो 2 विल बी इनपुट इन फॉर्म्स ऑफ एनी सिंबल्स, जैसे आपने सिंबल लिया स्क्वायर या स्मॉल ए लिया, तो 2 विल बी इनपुट एज ए 2a एंड बी विल बी, मतलब ये 3 विल बी इनपुट एज ए 3a। तो इस तरह से इनपुट किया जाता है। और इसका ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन जस्ट सिमिलर टू कॉन्टिनेशन ऑफ 2 स्ट्रिंग है, क्योंकि जस्ट वी हैव टू कॉन्टिनेट दीज 2 एंड यू विल गेट रिजल्ट, क्योंकि ये आपके 2 और 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो उसी तरह से है, आपके W1 में 2 कैरेक्टर हैं, W2 में 3 कैरेक्टर हैं, और जब आप कॉन्टिनेट कर देंगे तो 2 + 3 5 रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि कॉन्टिनेशन में 5 कैरेक्टर होंगे। तो और इसका डिज़ाइन मैं कॉन्टिनेशन का डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को। तो इस वीडियो में आपने इतनी सारी जानकारी पढ़ी, और जो टॉपिक है पोस्ट करेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, EMP-CP, मॉडिफाइड पोस्ट करेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, और भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप लोग ये इतनी चीज़ें प्रैक्टिस करिए। मैं एक चीज़ ज़रूर रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर आपको एक फंक्शन के लिए ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करना है, एफ ऑफ m, n इज इक्वल टू m माइनस n, ये एफ ऑफ m, n इज इक्वल टू m प्लस n, एफ ऑफ n इज इक्वल टू 1, तो और एफ ऑफ m इज इक्वल टू m प्लस 1, ये आइडेंटिटी फंक्शन की तरह से काम कर रहा है। और क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 1 है, अगर एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करें, तो जितने भी कैरेक्टर आप इनपुट करेंगे उसमें से केवल एक कैरेक्टर बचना चाहिए, बाकी सब
इरेज हो जाए या ब्लैंक हो जाए, इस तरह से आपको कुछ करना पड़ेगा। इसमें तो बड़ा सिंपल है कि इंक्रीमेंट करना है बाई 1, ये तो बहुत आसान है। आप सारे कैरेक्टर पढ़ते चले जाइए और जैसे इनपुट टेप में आपने एक एग्जांपल लिया कि m इक्वल टू 4 है, तो रिजल्ट m प्लस 1 इक्वल टू 5 आना चाहिए। अब आपने 4 को है बाई मीन्स आप 4a इनपुट किया, इसके लेफ़्ट और राइट में ब्लैंक सीक्वेंस है, ये भी आप जान रहे हैं। इसको रीड करिए और मॉडिफाइंग वैल्यू यही पुट करिए, राइट में मूव कर जाइए, फिर अगेन 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 यही काम करते रहिए। अब सपोज दैट वी हैव स्टार्टेड प्रोसेसिंग इन Q0 स्टेट, देन व्हेन एवर वी विल गेट फर्स्ट B इन Q0 स्टेट, अब आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपके लिए मार्कर की तरह से काम कर रहा है, याद कराने वाले की तरह से काम कर रहा है कि योर स्ट्रिंग जस्ट हैव बीन एंडेड। तो जस्ट राइट ट्रांजिशन रूल, डेल्टा Q0 A is equal to Q0 no need of change to state and no modification for A value and right movement। ये करते करते इस फंक्शन से, इस रूल से आप ये भी पास कर जाएंगे, ये भी पास कर जाएंगे, ये भी पास कर जाएंगे, ये भी पास कर जाएंगे। बट व्हेन एवर वी विल गेट दिस B, what should be डेल्टा Q0 कॉमा B इज इक्वल टू व्हाट वी विश, क्योंकि हमें इंक्रीमेंट करना है तो इस B को A बना दीजिए, इंक्रीमेंट हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू चेंज द स्टेट, अदरवाइज देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्लैंक सिंबल्स। ब्लैंक तो बहुत सारे हैं, सबको ये करते चला जाएगा तो आपका इंक्रीमेंट तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा। सो नीड टू चेंज द स्टेट Q1 एंड दिस B विल बी A एंड मूवमेंट, व्हाट शुड बी मूवमेंट, कुछ भी मूवमेंट रखिए, लेफ्ट राइट जो इच्छा करे रख लीजिए, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनी ट्रांजिशन फंक्शन for state Q1, so definitely it will be hard. So direction movement doesn't matter, तो ये आप चाहे लेफ्ट लिखिए या राइट लिखिए, कोई इशू नहीं है उसका, ये आपका इंक्रीमेंट हो गया। बट केयर, वी हैव टू केयर हियर while we are reading B, we need to change the state, we need to modify this B as A to increment to reflect value as a incremented. We have input 4A, so we have to get 5A, so that's why we are changing or we are modifying B as a small a. But state changing is major thing here. If we are not going to change state, we remains in Q0, then all the B in right side will be changed into A, that will in result will be infinite A in your string, so that will be wrong calculation. So just change here state also after reading B, that's why it can stop and you will get desired answer. तो ऐसे ही सोचना रहता है। अब एम प्लस एन का कैलकुलेशन तो आपका कॉन्कर्डेशन की तरह से था कि आपने इनपुट किया ए, मान लीजिए एम की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 3 है, तो बाई मीन्स ऑफ 2A यू हैव इनपुट स्मॉल एम एंड यूज सेपरेटर सिंबल एज ए ब्लैंक सिंबल फॉर एम एंड एन, और एन को 3A की तरह पुट कर दिया, तो 2 and 3 will 5, then what we need, ये किसी तरीके से A हो जाए, यह A ही रहे, ये A रहे और ये B हो जाए,
then 2a and 3a will be 5a. So just read, means just scan these a and don't modify these values. But when we read this b, you have to modify as a, and state need to change here, because these, to distinguish these a and these a we are reading in Q0 state, means we are reading m, and these a will be read in Q1 state, it means we are reading n. So distinguishing what we are actually reading, we need to be in different state. So we have changed here state also, and we have modifying b as a. So एंड वन, इसका आनंद एक और मिलेगा आगे चल के कि आप जब इस एक स्ट्रीम के बाद बी पाएंगे तो आप इन दोनों बी में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. वाइल वी आर रीडिंग बी इन Q0 स्टेट, it means it is a separator, and while we are reading small b in Q1 state, it remind that n have end. तो ये n ख़त्म हो गया है, ये भी बताएगा. आप वहीं पे राइट टर्न कर, लेफ़्ट टर्न कर जाएंगे इस b को बिना चेंज किए, b को b रहने दीजिए, राइट टर्न कर जाइए. एंड Q1 स्टेट में आप फिर a को अगर पढ़ेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि Q1 स्टेट में ही सारे a पढ़ के आए हैं. होगा क्या, इस a को पढ़ें Q1 स्टेट में पहली बार जब, तो यहाँ पहुँचे थे, फिर पढ़ेंगे Q1 स्टेट, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, तो ये लूप बन जाएगा, b से a से b, a से b, b से a. तो टू ओवरकम दिस सिचुएशन, while we are reading b in Q1 state, we have to remain this b as a b, means don't need to change this b, don't need to modify this b, and we have need to change the state as different state other than Q1 and Q0. तो Q2 कर लेते हैं. Q2 कर लिया तो Q2 स्टेट में a को जब पढ़ेंगे तो इसको b कर दीजिए, इसको ब्लैंक बना दीजिए, कम करना था, इसे एक को कम करना था. देखिए यहाँ b बताया था, और b करने के बाद इसको स्टेट, इसको लेफ़्ट के बजाय राइट मूवमेंट करा दीजिए. यहाँ जब b पढ़े तो Q2 कर लिया, और Q2 स्टेट में a पढ़ रहे हैं, अगर लेफ़्ट करेंगे तो सारे a को ब्लैंक करता चला जाएगा, ये प्रॉब्लम होगा. इस नाते राइट मूव करा दीजिए. एंड डोंट राइट एनी ट्रांजिशन फंक्शन फॉर Q2 स्टेट, Q2b, फॉर Q2b कोई भी मत लिखिए, तो Q2b पे हाल्ट कर जाएगा. तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था. तो ऐसे ही करना रहता है. तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस करेंगे. प्रोग्रामिंग आप लोगों का मेन जॉब है, तो उसी तरह से सोचना है, कुछ डिफरेंट नहीं सोचना है, एकदम प्रोग्रामिंग की तरह से सोचना है. तो आप जब सोचेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा और अच्छा लगेगा. इसको इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप इंटीजर कैलकुलेट करने, इंटीजर फंक्शन के लिए करिए. नेक्स्ट जो भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. तब तक ये सब आप लोग रिवाइज करते रहिए. धन्यवाद.